Hello students, I am Pragati Galambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. In the last video, we have studied first three types of letter of credit. So, in this video, we will continue with the next remaining types of letter of credit. But before starting that types, just take some overview on first three types and the definition of letter of credit. So, first definition. Letter of credit is a guarantee given by importer's bank on the request of importer that buyer, that is importer, make the payment to the seller, that is beneficiary, will be received on time and for the correct amount. Okay, it is a guarantee. Letter of credit is a guarantee given by importer's bank. Okay, it is a guarantee that importer, that is buyer, will pay to the seller on the correct time and on the correct amount. Basically it is a guarantee given by importer's bank. And in case buyer, that is importer, is unable to make the payment or he make the default to the credit to the seller, then bank will pay, that is importer's bank will pay all the amount or remaining amount of that contract. Okay, this is all the definition of letter of credit. Clear? Next, types of letter of credit. In last video, we have studied first three types, that is documentary and clean letter of credit. Second is revocable and irrevocable letter of credit. And third is confirm and unconfirmed letter of credit. Okay, just take the review. The first is documentary and clean letter of credit. As I said you that documentary itself indicate that documents should be attached. Okay, title documents are attached with the letter of credit while presenting for the payment. जब issuing बैंक के पास कोई भी letter of credit for the payment के लिए present किया जाएगा, when the title documents are attached to it, the letter of credit is known as a documentary letter of credit. Okay, which type of title documents are? For example, bill of lading, marine insurance policies, and invoices. Clear? These all documents, if are attached to the letter of credit, then that letter of credit is known as a documentary letter of credit. And the opposite second point is clean letter of credit. When there is no any document attached with the letter of credit, is known as a clean letter of credit. Okay, these both are contradictory or opposite to each other. Clear? The second type was revocable and irrevocable. Okay, I told you revoke, that means cancel or modify. Okay, revoke. Okay, so the revocable letter of credit is a letter where issuing bank can cancel or modify any terms in the letter. Okay, letter of credit means जो terms लिखे, जो terms and conditions है regarding payment, regarding place, time, okay, importer's name or any other parties, अगर वो terms and conditions में कोई भी change करना है और issuing bank अगर वो changes कर रही है, cancel कर रही है और any modification कर रही है, without giving prior notice to the beneficiary. Okay, that means exporter की permission लिए बिना ही कोई changes कर रही है, that letter of credit is known as a revocable letter of credit. Clear? The second is irrevocable letter of credit. That means the issuing bank cannot cancel or cannot modify any terms and conditions in the letter of credit without permission or without consent of beneficiary. बेनिफिशियरी की परमिशन के बिना कोई भी चेंजेस अगर नहीं हो सकते लेटर ऑफ क्रेडिट में, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज अ इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. अगर इशूइंग बैंक कैन कैंसिल और मॉडिफाई एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज अ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर? रिवोकेबल कैन कैंसिल और मॉडिफाई, इररिवोकेबल कैनॉट कैंसिल एंड मॉडिफाई. सिंपल. ओके, थर्ड टाइप वाज कंफर्म एंड अनकंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, सी जस्ट ये इमेज देखेंगे. Issuing bank and confirming bank. Confirming bank is a bank that add its confirmation to the credit upon the issuing bank authorization or request. Okay, when issuing bank issues a letter of credit, if issuing bank requests to another bank that add your confirmation to the letter of credit, means जो issuing bank का letter of credit बनाया है, उसी letter of credit में confirming bank एक additional bank क्या करेगी, उसका कंफर्मेशन देगी कि यस ये लेटर ऑफ क्रेडिट करेक्ट है, एंड इन केस इशूइंग बैंक फेल्स टू रीपे द मनी, कंफर्मिंग बैंक विल पे ऑल द रिमेनिंग अमाउंट. ओके, हमने डेफिनेशन में देखा था, इफ buyer
fails to repay the payment, issuing bank pay the money. Okay. In this case, if issuing bank fails to make the payment, confirming bank will pay. Okay. समझ में आया? This is the process. If buyer fails to make the payment, issuing bank will pay. And issuing bank also fails to make the payment, then confirming bank will pay. So the confirmation is very important, and if there is any additional bank's confirmation in the letter of credit, that letter of credit is known as a confirmed letter of credit. Okay? When any additional bank which is in the exporter's credit, okay, give its confirmation to the letter of credit after the issuing bank's request is called confirmed letter of credit. Okay? And the second is unconfirmed. See, this is the opposite to confirmed letter of credit. When there is no any such confirmation by the additional bank, it is known as a unconfirmed letter of credit. Okay? When the bank does not add the confirmation in the letter of credit, is called unconfirmed letter of credit. Clear? I hope these three types are very clear to you. Now we move to the next type, that is transferable and non-transferable letter of credit. Okay? See, the name itself indicates transferable. That means transfer from one person to another person. The letter of credit which can transfer from one person to another is called transferable letter of credit. See, one person, that means the beneficiary. Okay? For example, beneficiary का मतलब क्या है? एक्सपोर्टर. अगर एक लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर के पास गया है थ्रू इशूइंग बैंक, थ्रू एडवाइजिंग बैंक, वो एक्सपोर्टर के पास गया. इफ एक्सपोर्टर इज अ नॉट अ सेलर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपोर्टर ने क्या किया है, दूसरे किसी पर्सन से पैसा लिए, फिर उसके किसी पर्सन से वो गुड्स परचेज किए और उसने सिर्फ क्या किया, ट्रांसफर किए वो गुड्स या सेल किए. सो अगर बेनिफिशियरी को किसी और को पैसे ट्रांसफर करने हैं, सो ही डिमांड फॉर द ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. So he can transfer his letter of credit from first beneficiary to second beneficiary or any other person. Clear? So there is some rules that transfer can be done only once. ठीक है, एक ही बार ट्रांसफर होगा. सेकेंड, the transfer can be done only subject to terms and condition of LC. Okay? लेटर ऑफ क्रेडिट में जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए हैं उसके हिसाब से ही ट्रांसफर किया जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा. क्लियर? समझ में आया? दिस लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर किससे होता है? इट इज फ्रॉम फर्स्ट बेनिफिशियरी टू अनदर पर्सन और फर्स्ट बेनिफिशियरी टू एनी अदर बेनिफिशियरी. क्लियर? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था हमारा एक पर्सन है, इज फ्रॉम जापान. ठीक है, उसने क्या किया है, उसने गुड्स मैन्युफैक्चर तो किए, पर वो मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने पैसा लिया है किसी और थर्ड पार्टी से, उसके फ्रेंड से. अब इसको पैसा देना पड़ेगा. सो ही इज अ फर्स्ट बेनिफिशियरी. उसका जो फ्रेंड है जिससे उसने पैसे लिए वो इज अ सेकंड बेनिफिशियरी. सो जब लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाएगा बाय द इशूइंग बैंक, एक्सपोर्टर कैन आस्क और बेनिफिशियरी कैन आस्क टू इंक्लूड द क्लॉज ऑफ ट्रांसफरेबल. दैट मीन्स he can transfer his letter of credit to his friend or to another party. So clear? इसके रूल्स क्या होगी? द फर्स्ट रूल इज ट्रांसफर कैन बी डन ओनली वंस. एक ही बार ट्रांसफर किया जाएगा. सेकेंड, लेटर ऑफ क्रेडिट में जो टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूड है उसके हिसाब से ही ट्रांसफर किया जाएगा. ओके? These rules are given by uniform custom and practices of documentary credit. See, this is a set of rules for the issuing of letter of credit. Okay? यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस, ये क्या है? लेटर ऑफ, ये एक सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इशू किए हैं बाय द आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इशू किए कि हाउ टू इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर? दिस ऑल द रूल्स आर गिवन बाय आईसीसी, दैट इज द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स. ओके? और किसके थ्रू दिए? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस. ओके? दिस रूल्स में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर कैन बी डन ओनली वंस एंड ट्रांसफर कैन बी डन ओनली सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन. दिस नोन एज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. सिंपली याद रखना है, द लेटर विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बेनिफिशियरी, वन पर्सन टू अनदर, वन बेनिफिशियरी टू अदर बेनिफिशियरी इज नोन एज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड अगेन opposite to that, contrary to that, if the letter of credit cannot transfer from one person to another is known as a not transferable letter of credit. Clear? Next, red and green clause letter of credit. See, this is very important and something different.
First, red clause letter of credit. It contains the clause of pre-shipment finance printed in a red ink. Okay, why this is red clause? Because it is printed in a red ink, in which beneficiary get advance payment from the negotiating bank for the certain period for the pre-shipment finance against the return undertaking from exporter. Clear? इतना समझ में आया? अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे which will easier for you. See, this is one person from India, this is second person from Japan. Okay, this is a exporter, that is beneficiary, and this is a importer, that is buyer, opener or applicant. Okay, you know. Now इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है ऑफ सेलिंग गुड्स, दैट इज जापान इज सेलिंग गुड्स, एक्सपोर्टर इज सेलिंग गुड्स टू इंडिया, दैट इज इंपोर्टर. एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, कुछ गुड्स सेल कर रहा है टू इंपोर्टर, इंपोर्टर को वो गुड्स सेल कर रहा है. नाउ इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट टू हिज बैंक. ओके, द बैंक इज नोन एज अ इशूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक. व्हाई इट इज इशूइंग और ओपनिंग बैंक? Because this bank issues the letter of credit on the request of importer, so bank is known as a issuing bank. Okay, but while issuing the letter of credit, exporter ने क्या किया, exporter demand for the advance payment. exporter ने क्या किया, डिमांड किया for advance payment. ठीक है, उसको क्या चाहिए, एडवांस पेमेंट चाहिए फॉर द प्री शिपमेंट फाइनेंस. उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकिंग के लिए और परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल के कुछ पैसा चाहिए. उसने डिमांड किया फॉर दैट आई नीड द एडवांस पेमेंट और आई नीड द प्री शिपमेंट फाइनेंस. ओके, नाउ क्या करेगी, द निगोशिएटिंग बैंक क्या करेगी, एडवांस पेमेंट देगी टू द एक्सपोर्टर. क्लियर? निगोशिएटिंग बैंक क्या करेगी, उसको एडवांस पेमेंट देगी ऑन द रिटर्न अंडरटेकिंग. दैट एक्सपोर्टर क्या करेगा, रिटर्न अंडरटेकिंग देगा दैट after the manufacturing of goods, I will send all the goods to the importer and also give all the documents to the negotiating bank. Okay, ठीक है. ये ऐसा क्या होगा, एक रिटर्न अंडरटेकिंग दिया जाएगा बाय द एक्सपोर्टर एंड इशूइंग बैंक क्या करेगी, उनका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट में प्री शिपमेंट का क्लॉज रेड इंक में लिखेगी. ओके, क्या करेगी इशूइंग बैंक, while making the letter of credit, issuing bank writes the pre-shipment clause in a red ink is known as a red clause letter of credit. Clear? समझ में आया? सिंपल वर्ड में याद रखो, if exporter demands the advance payment, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड्स के पैकिंग के लिए या उसके रॉ मटेरियल परचेज के लिए एक्सपोर्टर को पैसा लगता है. ओके, उसके पास अगर वो पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा जो पेमेंट तुम लोग मुझे बाद में देने वाले हो उसमें से कुछ पार्ट मुझे पहले से ही दो. इट इज एडवांस पेमेंट, प्लीज गिव मी द एडवांस पेमेंट. ओके, और वो एडवांस पेमेंट का जो क्लॉज है वो क्लॉज इशूइंग बैंक क्या करेगी, उसके लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखेगी. ओके, वो जो क्लॉज है वो रेड पे इंक से लिखा जाएगा, सो इज नोन एज अ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर? समझ में आया? अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीन बाय प्री शिपमेंट फाइनेंस. ओके, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीन बाय प्री शिपमेंट फाइनेंस. ओके, प्री-शिपमेंट फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज अ पैकिंग क्रेडिट. ओके, पैकिंग करने के लिए और पैकिंग करने से पहले जो कुछ भी काम रहते हैं उसके लिए जो पैसा मिलता है, इट इज अ पैकिंग क्रेडिट. ओके, प्री-शिपमेंट फाइनेंस, प्री मींस प्रीवियस. ओके, गुड्स शिप में लोड होने से पहले, जो कुछ भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इज नोन एज अ प्री-शिपमेंट फाइनेंस एंड इज ऑल्सो नोन एज अ पैकिंग क्रेडिट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, हमेशा पूछा जाता है प्री शिपमेंट फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज पैकिंग क्रेडिट. क्लियर? इट इज अ फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द बेनिफिशियरी दैट इज एक्सपोर्टर इन एडवांस फॉर द परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स. क्लियर? जो एक्सपोर्टर को परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के लिए जो पैसा लगता है, जो फाइनेंस लगता है, वो इन एडवांस पे किया जाता है बाय द बैंक. ओके, it is a finance given to the beneficiary, that is exporter, against the return confirmation by exporter that he will submit all the documents to the bank. Okay, हमने प्रोसेस ऑफ एलसी में देखा था कि वो एक्सपोर्टर को क्या करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइसेस, ये सारे डॉक्यूमेंट
ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सबमिट करने हैं टू द निगोशिएटिंग बैंक। ओके, सो ये अंडरटेकिंग के बेस पे निगोशिएटिंग बैंक क्या करेगी, एक्सपोर्टर को दैट मीन्स बेनिफिशियरी को प्री शिपमेंट फाइनेंस दैट इज पैकिंग क्रेडिट अलाउ करेगी। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस इज ग्रांटेड फॉर 180 डेज। ओके, प्री शिपमेंट फाइनेंस का जो पीरियड है वो 180 डेज का ही होता है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ लोन ओनली। हम लोगों ने लोन में देखा था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। सी, दिस इज अ टाइप ऑफ लोन ओनली, बट यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडवांस में पेमेंट किया जाएगा, एडवांस में एक अमाउंट दी जाएगी, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू द एक्सपोर्टर को अगेंस्ट द रिटर्न कंफर्मेशन बाय एक्सपोर्टर, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड दैट इज आफ्टर 180 डेज एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा टू द निगोशिएटिंग बैंक। क्लियर, इज नोन एज अ प्री शिपमेंट फाइनेंस। समझ में आया। नाउ व्हाट इज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी हमने देखा कि रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या है, जो प्री शिपमेंट का क्लॉज है दैट मीन्स परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड पैकिंग ऑफ गुड्स। ये जो क्लॉज है वो रेड कलर में या रेड इंक में लिखा जाएगा इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, इज नोन एज अ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज अ लेटर where beneficiary get advances for the pre-shipment finance from negotiating bank with the finance for insurance and go down policy or go down facility। क्लियर, हमने देखा था रेड क्रॉस लेटर ऑफ क्रेडिट में प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसमें तीन फैसिलिटी है, एक परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड पैकेजिंग। ओके, ग्रीन क्लॉज में ये तीन फैसिलिटी के एडिशन में इंश्योरेंस एंड गोडाउन फैसिलिटी, गोडाउन इज अ वेयर हाउस फैसिलिटी भी ऐड की जाती है। ओके, उसके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो क्लॉज है वो ग्रीन कलर में लिखा जाता है, ग्रीन इंक में लिखा जाता है, सो इट इज नोन एज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, दिस बोथ आर द सेम। रेड क्लॉज में रेड इंक में लिखा जाएगा और वहां पे सिर्फ प्री शिपमेंट फाइनेंस होगा। प्री शिपमेंट फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड है, परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड पैकिंग ऑफ गुड्स। ओके, ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लॉज ग्रीन इंक में लिखा जाएगा, उसमें प्री शिपमेंट फाइनेंस प्लस इंश्योरेंस एंड गोडाउन मीन्स वेयर हाउस पॉलिसी, ये दोनों भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर, इज नोन एज अ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, प्री शिपमेंट फाइनेंस क्लियर है सबको। इट इज ऑल्सो नोन एज पैकिंग क्रेडिट एंड इट इज ग्रांटेड फॉर 180 डेज। क्लियर, नॉट मोर देन 180 डेज, ओनली 180 डेज के लिए ही ग्रांट किया जाएगा बाय निगोशिएटिंग बैंक। ओके, okay, the next is general and special letter of credit. Okay, this is very simple. A general letter of credit is one addressed by the issuing bank to the world, that is advances can be granted to any one third person who present the letter of credit. Okay, general letter of credit का मीनिंग क्या है, जब इशूइंग बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगी, इशू करेगी, वो लेटर ऑफ क्रेडिट में किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिखा होगा। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपोर्टर है XYZ। ओके, XYZ का नाम वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा। क्यों, इन केस अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफरेबल है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में ट्रांसफरेबल का क्लॉज है, दैट मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर करना है XYZ को किसी और पर्सन को, ही कैन इजीली ट्रांसफर इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वही लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट अगर उसको बैंक से लोन लेना है या प्री शिपमेंट फाइनेंस करना है, तो ही कैन इजीली टेक द प्री शिपमेंट फाइनेंस और लोन। ओके, so there is no special person's name included in the letter of credit. The letter of credit is known as a general letter of credit. Okay, general, that is one addressed by issuing bank to the world. वहाँ पे किसी भी specific person का नाम नहीं लिखा जाएगा। Okay, the opposite is that special letter of credit. This is one which is addressed to the specific person, only those get advanced by the bank. Okay, अगर this स्पेशल लेटर ऑफ क्रेडिट अगर ट्रांसफरेबल है तो ट्रांसफरेबल ये क्लॉज यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा है और वो किसी भी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगा। प्लस इन केस अगर स्पेसिफिक जो पर्सन है दैट इज अवर एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी को अगर एडवांस लेना है, प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना है फ्रॉम द बैंक, ही कैन टेक दैट एडवांसेस फ्रॉम द बैंक। ओके, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वही स्पेसिफिक पर्सन का जो नाम है उसी को ही एडवांस दिया जाएगा। क्लियर, इज नोन एज अ स्पेशल लेटर ऑफ क्रेडिट।
General letter of credit, no specific name is there. It is addressed to the world. And special letter of credit, there is a name of specific person included in it. Clear? Is known as a general and special letter of credit. Okay? In this video हमने क्या किया? 3 types देखी. Transferable and non-transferable. Second, green clause, red clause letter of credit and green clause letter of credit. And third is general and special letter of credit. Clear? In next video हम लोग next 3 types of letter of credit का study करेंगे. Clear? Thank you.